Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Today, after looking at your paper, my heart was pounding out with joy. Ask me why, because everything that I shared along with you in the last 2 days, maybe it's in paper solution or in the textual importance, everything came out and bounced up right inside this paper. What more can I ask God for? And also, I'm a glad guy on this planet right now because इसके पहले ये वीडियो बनाने के पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था एंड उसमें तुम लोग के कमेंट्स देखे तो आई वाज फ्लाइंग विदाउट विंग्स कैन यू जस्ट इमेजिन अगेन so everything in the paper was very easy. It reflected of what I have messaged you, sorry, of also a video that I have drafted you. It had come up in the paper, so for which I am extremely happy. It's now our time to check the answers, that whatever I am going to give you here, was that the same that you have written or not. And if not, there's no worry, we almost have one last paper left, and with that we can score more. All right, chaliye. The dash saw the rise of Mathura school. Kushana period is the right answer. Bilar near Mahabaleshwar is also known as the village of books. According to the dash, human history is the history of class struggle. Karl Marx. Identify the wrong pair in the every set and rewrite. Ramman यहाँ पर है. Dance form in West Bengal. दशावतारा है. त्यागराज. James Mill है. Feminist historian. Do as directed. Types of tourism में we have agricultural tourism, international tourism, regional tourism, local tourism, national tourism, health tourism, eco tourism. यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है और इसका ही आंसर आपको मिल गया रहेगा यहाँ पर एकदम क्लियरली. वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, प्लेस काजीरंगा नेशनल पार्क, ये 1985 में बना हुआ था. 1987 में वी हैव सुंदरबन नेशनल पार्क. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माई हेल्थ इज़ वेरी डाउन, तो अगर आपको मेरा आवाज़ बराबर नहीं आएगा तो आई एम सॉरी फॉर इट. वेस्टर्न घाट्स वी हैव गॉडेस इन 2012. 2040 में वी हैव हिमालयन नेशनल पार्क. I hope this was very much clear to you. Question number 3 was a out of syllabus question, so just forget it. Write the short note on the role of newspaper in the Indian struggle for independence. यहाँ पर ये क्लियर है क्वेश्चन आपको, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ये यहाँ पे क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीज़न. फोकाल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. ये एक क्वेश्चन है इधर पे, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपने एग्जाम में अगर किया रहेगा तो आपको इसके मार्क्स मिल गए रहेंगे. फोकाल्ट वाला क्वेश्चन वाज वेरी इजी. आई टोल्ड यू 5th चैप्टर में से या 6th चैप्टर में से गिव रीजन ज़्यादा आने वाले हैं जो कि यहाँ पे सेम रिफ्लेक्ट किए हैं. अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा रहेगा डेफिनेटली मार्क्स आपके ही हाथों में होंगे. एंड यहाँ पर आएगा रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु इज़ कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी. तो हम लोग को पता है इट इज़ मेजर ध्यानचंद हु इज़ नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी. इन इंडिया मेजर ध्यानचंद बर्थडे सेलिब्रेट एज डैश. तो इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया. राइट इन शॉर्ट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद इन ओलंपिक्स. मेजर ध्यानचंद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ओलंपिक्स के अंदर, आपको यहाँ पर पैसेज में से लिखने का था. तो ही वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम पे अगर आपने लिख दिया होगा. ही वन गोल्ड मेडल एट 1936 बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी. ऑलराइट, वहाँ पे विटनेस करने के लिए अडोल्फ हिटलर भी आए थे. ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रीवियस हॉकी टीम ओलंपिक्स एंड वन गोल्ड मेडल्स. ये भी अगर आपने लिखा होता तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे. ऑलराइट एवरीबॉडी, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अगेन अ क्वेश्चन कमिंग राइट फ्रॉम the importance which I had given to you. Then professional opportunities also are marked important. I hope आपने ये भी लिखा रहेगा. Next 73rd and 74th amendment political science में we have first question, local self government institution is the right answer. The major challenge faced by all the democratic nations in the world is deepening the roots of democracy. State whether the following statements are true or false. Under special circumstances the election commission hold इलेक्शंस इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ सेकेंड टाइम. ये क्लियर है. नेक्स्ट, कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी. ये भी क्लियर है. नेक्स्ट थर्ड वाला, यहाँ पर ये आपको पता है कि स्टार्टिंग के 2 है जो ट्रू है.
मतलब जो फर्स्ट है ट्रू और लास्ट जो है थर्ड वाला वो ट्रू है एंड द बीच वाला इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे जब मैं पढ़ता हूँ, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, अगेन आई टोल्ड यू गाइस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आंसर, डू नॉट मिस इट। हम लोगों ने उस दिन मैंने आपको मार्क भी करवाया था हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो let me just take you there where this answer belong to. 1 minute. Process of election comes in political science 3rd chapter, I guess. Maybe 1st chapter. 2nd. Electoral process of election. This is the right answer in supposed to your question. All right. अगर आपने इसको सेम एज इट इज़ लिखा रहेगा एक्यूरेटली तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट, ऑलराइट, देन नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेन, एक्चुअल वोटिंग के नीचे काउंटिंग ऑफ वोट्स, इधर पे रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन के बाद में वी हैव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, काउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन कैंपेन, देन ईयर, finalizing voter list. This was very much clear and simple. All right, next, challenges before Indian democracy. This comes from the last chapter. Challenges before Indian democracy is Naxalism, terrorism, corruption. ये सब challenges है. Yes. Social challenge, communalism. यहाँ पे आपको लिखना है Naxalism, NAXALISM. All right, then we have corruption, terrorism, and also we have communalism. इसी के साथ में आपका पेपर सोल्यूशन जो है हिस्ट्री का एकदम आराम से ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने ये सारे आंसर्स को ऐसे ही लिखा रहेगा सिंपल तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट्स है ज्योग्राफी को लेके तो आप मेरे ज्योग्राफी का पेपर सोल्यूशन, आई एम सो सॉरी, पेपर सोल्यूशन का तो वीडियो ऑलरेडी वी हैव ऑफ लास्ट ईयर, वो देख सकते हो। टेक्सचुअल इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, अब वहाँ से उसको देख के ज्योग्राफी का भी रेफरेंस अच्छे से कर लीजिए। until we meet for the very next time, all the best, keep learning। लास्ट पेपर है, अपना बेस्ट देना है। चलिए।